Hare Krishna. Harsha, you can start with the chants. Am I audible? Yes, you're audible, but we can't see you. Okay. Yeah, okay. I'll do the starting pranam and then you can start. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Finish it. Last one. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, everyone. Welcome back to reading Bhagavad Gita. I see very few people are there today. Okay, so last time we finished first chapter and we started with the introduction of second chapter, which is by various acharyas. It's called Sankhya Yoga or analytical knowledge. But Prabhupada, especially because Bhakti Vinod Thakur, who's one of a very exalted uh, masters in the Gaudiya Sampradaya, he chose to call the contents of Gita summarized Gita ka Sar to this second chapter, because they feel that it has all the elements which is compressed in the form of chapter second. We also discussed what is this Sankhya Yoga or analytical knowledge. Does anybody remember and would want to repeat of your understanding so that we know that we are on the same page? What is Sankhya Yoga? Okay, so this means, if we simplify Sankhya Yoga, it has a lot of elements which are studied by analytical speculators to understand what is matter and what is spirit. Yeah, so the study of matter and spirit is सांख्य योग. अब अगर इसको इजीली समझना चाहें तो जैसे कि एक पेड़ है और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप पेड़ में पानी देंगे तो पेड़ ग्रो करेगा. दैट इज भक्ति योग. पर अगर कोई बोले कि मैं नीचे जो इसकी जड़ें हैं उनको स्टडी करना चाहता हूँ, कैसे रूट्स फॉर्म हुई, कैसे पानी ऊपर जाता है, कैसे देन इट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस ऑफिस ट्री के एलिमेंट्स में कैसे पहुंचता है पानी, सो दैट स्टडी इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी. है ना. एक चीज है कि समझ आ गया कि ये है, किसी के प्रायर एक्सपीरियंस से हमें ये समझ आ गया कि अगर हम पेड़ को पानी देंगे तो ये ग्रो करेगा, तो वो भक्ति योग है कि किसी ने आपको समझा दिया इजी रास्ता. बट देर आर पीपल हु आर मोर क्यूरियस, हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द वेज हाउ थिंग्स वर्क. फॉर देम इट्स सांख्य योग. तो भगवान इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाने के लिए कि हम लोग बने कैसे हैं. है ना. हम जिसको अपना मान के बैठे हैं वो क्या चीज है, और जो इसके अंदर हम खुद हैं उसको हम कैसे भूल गए. तो डेसिफर कर देंगे. हमारी दो आइडेंटिटीज निकल कर आएंगी. एक हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी जो कि हम
इस बॉडी को मान के बैठे हैं, एक्चुअली तो वो हमारी आइडेंटिटी है ही नहीं, बट फॉर पर्टिकुलर ईयर्स हम उसी को सच मान लेते हैं। जैसे कि हमने उस दिन भी डिस्कस किया जब अपने फर्स्ट वर्स में राजा जनक की स्टोरी डिस्कस की थी कि सच और सत्य दोनों में क्या फर्क है ना, ट्रू एंड ट्रूथ। सो ट्रूथ इज समथिंग दैट इज यूनिवर्सल, दैट कैन नॉट चेंज। तभी अष्टवक्र ने उनको बोला ना ये सच है ना वो सच है, क्योंकि सच जो है वो कभी नहीं बदलता, बट ट्रू इज समथिंग दैट इज वेरिएबल, वो हर एक की अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलती है। तो फर्स्ट वर्स जो था वो संजय ने बोला और उन्होंने बताया कि अर्जुन की फीलिंग्स बताने की कोशिश की धृतराष्ट्र को, और 2-3 वर्ड्स उसमें थे इंटरेस्टिंग। कृपया आविष्ट, पिटीफुल, ही इज फुल ऑफ कंपैशन, अश्रुपूर्ण, रो रहे हैं, और विषिदंतम, लेमेंटिंग। सो ये तीनों को बताया गया और हमने समझा कि दीज आर नथिंग बट symptoms of ignorance, and we also discuss what are 2 kinds of compassion. The real compassion is not, just crying over the present condition as Arjun is crying. इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आपके सामने किसी को खांसी आ रही है तो आप कंपैशनेट हो जाओगे, ऑब्वियसली द पर्सन इज कॉफिंग, और उसके मुंह पे जाके हैंकी रख दो कि बस किसी तरह इसकी कॉफिंग रुक जाए। that is material compassion. But if you take that person to the doctor, show him, get him properly treated and root से उस problem को eradicate कर दो, that is the real compassion. ऐसा थोड़ी है कि बस अभी temporary कि अभी इसका मुंह बंद हो जाए किसी तरीके से, चाहे वो अंदर से उसको कितनी भी problem हो रही हो। तो यही समझाने की हमने कोशिश की थी कि 2 तरह के कंपैशन होते हैं। जो टेम्पररी कंपैशन है, ये जो मटेरियल कंपैशन है, ये हमेशा मिसलीडिंग है। ये हमारे अपने रिलेशंस, हमारी अपनी सिचुएशन से अराइज होता है, एंड दस इट इज नेवर द करेक्ट वे टू लुक एट थिंग्स। बट द रियल कंपैशन इज कि which can gives us a permanent relief. So in this case, real compassion is to be self realized. आपको पता तो चले आप कौन हो, फिर तो आप सॉल्व करोगे। Yeah, so I'll just do second verse and third, and then we can probably read the purports because we did not read it that day. So text 2, Shri Bhagavanuvach kutastha kashmalam idam vishme sam upasthitam anaryajushtamam asavyagram akirtikaram Arjuna. So जो सेकंड वर्स है वो स्टार्ट होता है श्री भगवान उवाचा, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। भगवान किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से। हे अर्जुन, कुतः, कहां से, त्वा, तुमको, कश्मल इदम, ये कश्मल कहते हैं गंदगी को, इन दिस केस अज्ञान, कहां से ये गंदगी या ज्ञान, इदम ये शोक आ गया तुम में, उपस्थितम विश्व में, इस समय में जो कि बहुत क्रिटिकल है, कहां से आ गया तुम्हारे अंदर ये शोक। अनार्य, अनार्य इज द रूट वर्ड फॉर, जैसे हम बड़ी कॉमनली अनाड़ी बोलते हैं ना किसी को कि अनाड़ी है। अनाड़ी समबडी जिसको जीवन का मूल्य नहीं पता, हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। अनार्य जुष्टम, जुष्टम मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा हो ये। असर्वज्ञम, ऊंचे लोक में नहीं जाने वाला। अकीर्ति, अपयश, इनफैमी, जैसे यश होता है फेम, तो अपयश मतलब इनफैमी, कारण कारण। तो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि कहां से तुम्हारे अंदर ये कल्मश आ गया है, ये जो कि उस तरह के तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि तुम अनाड़ी नहीं हो, तुम जीवन का मूल्य जानते हो, तो तुम्हारे अंदर ये कहां से आ गया। इससे यहाँ पे तो तुम्हें अपयश मिलेगा ही मिलेगा इन दिस वर्ल्ड, बट ऊपर के हायर प्लैनेट्स पे भी नहीं जा पाओगे। तो 3 बातें निकल कर आई कि क्या क्या होगा। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले भगवान बोले, तो दैट मीन्स यहाँ पे कृष्णा को भगवान बोला जाता है। पूरी भगवत गीता में उनको भगवान बोल रहे हैं। भगवान मीन्स द सुप्रीम लॉर्ड। So we have previously also, I think we have discussed
that the Supreme Lord or the Absolute Truth is realized in 3 phases of understanding. Anybody remembers that when we discussed it last time? Okay, so it is Brahman, Paramatma and Bhagwan. yes, yes. So Brahm means तीनों का ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है एब्सोल्यूट ट्रूथ ही, बट उनकी रियलाइजेशन वेरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, समबडी हु बिलीव्स दैट देयर इज नो रूप, कोई भगवान का कोई आकार या फॉर्म नहीं है, निराकार फॉर्म है. देयर आर पीपल हु जस्ट फॉलो द इम्पर्सनलिस्ट विजन ऑफ द गॉड. दे फील दैट ही डजंट हैव अ फॉर्म. तो वो ब्रह्म, दे जस्ट सी भगवान नहीं है, वो एक लाइट है, ब्राइट लाइट. मैं आंख बंद करती हूँ, आई सी अ ब्राइट लाइट. तो दैट मीन्स वो लाइट जो भगवान से ही आ रही है, बट वो उसके बियॉन्ड नहीं जा पाए. जनरली जो ज्ञानी होते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वो भगवान को ब्रह्म फॉर्म में ही समझते हैं, वो भगवान के रूप तक नहीं पहुंच पाते. तो वो पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सेम एब्सोल्यूट ट्रूथ. आप वहीं पे रुक जाते हो, आप ब्रह्म ही मानते हो भगवान को. देर आर योगीज who sit in meditation and they realize the same absolute truth in the form of परमात्मा sitting in our hearts, है ना. वो बोलते हैं कि परमात्मा है, पर दोनों ही चीजों में एक फ्लॉ है. ब्रह्म तक पहुंचने में यू आर जस्ट स्टक विद द लाइट. जो सोल है उसको आनंद चाहिए. तो जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो ब्रह्म तक पहुंचते हैं, या जो भगवान को निराकार मानते हैं, जैसे कि बहुत सारे हम अपने आसपास भी देखेंगे, पीपल हु गो टू गुरुद्वारास एंड सिखिज्म में स्पेशली, देयर इज नो फॉर्म. भगवान को मानते हैं पर फॉर्म को नहीं मानते. वो सोचते हैं कि वो एक निराकार शक्ति है जो अवेलेबल है. तो उसमें क्या होता है कि जब मान लो आफ्टर वी डाई एंड वी हैव जस्ट रियलाइज्ड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म, तो हम ब्रह्म तक ही पहुंचेंगे. भगवान की ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की लाइट है, वो आ रही है, और हम सिर्फ ब्रह्म उस लाइट में जाके सेटल हो जाएंगे. एंड देन वील डू व्हाट? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ क्लोज्ड इन अ रूम फुल ऑफ लाइट, नो एक्शन, नो एक्टिविटी. So then you'll have desire to do something. The moment a soul desire, he has to come back to the material world again. So there are chances of falling down if you don't realize the complete potential of the absolute truth. जो योगी है वो योग में बैठ के ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं ना. देयर इज नो अदर वे. तो जैसे ही योग छूटता है, परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है उनका. बट पीपल हु रियलाइज द भगवान फॉर्म, द भगवान फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, वहां पे एक संबंध बनता है. पहले तो आप पहुंचते हो भगवान तक क्योंकि आपने भगवान को भगवान तक समझा, फिर आपका एक रिलेशन बना. तो इवन व्हेन यू लीव दिस प्लैनेट एंड गो टू हिम, you are still enjoying, which is the nature of a soul, to have a reciprocation, to have some kind of a association. So the chances of fall down is zero, because आपको वो मिल गया जिसको आप ढूंढ रहे थे. ब्रह्म में वो complete realization नहीं है वो भी भगवान ही. It is a bit complicated. I don't expect you to understand it right now, but in the due course you'll realize what is the difference. ब्रह्मवादी होते कौन है, और ब्रह्म, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक पहाड़ है, आप दूर से खड़े उसको देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि यस इट इज अ माउंटेन. दैट इज ब्रह्म फीचर ऑफ द गॉड. अब आप थोड़ा सा और आगे चले, जब आप थोड़ा और पास गए तो आपको दिखा, रहे नहीं, ये पहाड़ के ऊपर कुछ ट्रीज भी हैं और कुछ एनिमल्स भी घूम रहे हैं. सो थोड़ी सी आपकी रियलाइजेशन और क्लियर हुई. दैट इज परमात्मा. बट व्हेन यू आर ऑन द माउंटेन, you could see every little bit of details of that mountain. That is the Bhagwan feature. Everything revealed to you. पर भगवान वो रिवील उसी के लिए करते हैं जो जिस तरीके से रेवलेशन चाहता है. अगर कोई भ्रम पे रुकना चाहता है तो भगवान उसको फोर्स नहीं करते कि आप मुझे भजो, क्योंकि कई लोग नहीं सेवा करना चाहते भगवान की. वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि कोई भगवान, कोई रूप हो सकता है उनका हमारी तरह, है ना. देर आर वेरियस रीजंस विच वी विल डिस्कस व्हेन वी विल गो फर्दर. बट वो वहीं पे रुक जाते हैं. उनको लगता है बस
ये इतना ही खा, लाइट है, एनर्जी है, ही गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी, है ना. बट देन देर आर प्रोज एंड कॉन्स इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड in his full potency, which is the Bhagwan feature. कुछ कुछ समझ आ रहा है, or is it getting confusing? Will anybody wants to summarize what I just said in simple words? Because this is very important. If we don't understand it at this stage, we'll always be confused. I can do. Okay, Shalini, yes. So basically there are like three forms of not God but जिस नाम से वो लोग बिलीव करते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. लेकिन जो ब्रह्मन और परमात्मा है, they are not the ultimate realization, ultimate goal where we have to reach. Like you said, the yogis are like, they believe that they have a Paramatma inside them and they just meditate on that. So they will only reach that. And as soon as, like for humans also, if you have given an example of Sikhism, yes, they believe in Nirankar and they just follow that, their holy book. So no one knows that where will they go after the death, and of that's not the ultimate form of liberation, and they might fall back to the material world as soon as any desire comes up. So the ultimate realization is Bhagwan, and in this Bhagavad Gita it's clearly stated that it's Krishna who, through whom we can get liberated from the cycle of birth and death. Very good, very clear understanding. So समझ आ गया सबको? कोई और कुछ डिफरेंट बोलना चाहेगा? ये सर्षे पूछो. मेरे को एक क्वेश्चन था. Is there anything like right or wrong about staying in the Brahma or Paramatma, like those forms? Because, or like the ultimate one is always like Bhagwan and that is the like quote unquote right one or something like that? No, there's no right and wrong. The end result, जो कि हम सीख कर रहे हैं, happiness, वो is not possible in the Brahm feature. I tell you why. Because there's nobody to reciprocate to. तो ब्रह्म तक जो पहुंचते हैं, जो ज्ञानी ब्रह्म को पाते हैं ब्रह्मवाद में, उनको उनके दुख तो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. उन्होंने भगवान को, दे आर स्टिल बेटर देन पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड कि पहुंचना कहाँ है. वो कहीं तो पहुंचे, यहाँ से तो निकले ना. बट वहां पे यही है ना कि दुख तो खत्म हो गया पर सुख मिलना शुरू नहीं हुआ, जिसकी सर्च यहाँ पे भी हमारी कांस्टेंट रहती है ना. हमें सुख चाहिए, है ना. वही सुख तो ढूंढ रहे हैं, कभी चीजों में, कभी लोगों में, कभी दोस्त में, कभी पेट में, कहीं पे भी हमें मिलना चाहिए कुछ. सो देयर इज समथिंग, बिकॉज एक, अवर नेचर इज टू सर्व एंड दूसरा बी सर्व्ड, है ना. तो अब ब्रह्म में जाके ये दोनों काम नहीं हो पाएंगे. दुख तो खत्म हो गया, जो मटेरियल दुख था वो तो खत्म हो गया, पर सुख फिर भी नहीं मिला ना. तो पार्शियल आपका रस अलग है ना. और वहीं आपके पास भगवान है, जिनको, जो आपका बच्चा बनने को भी तैयार है. वात्सल्य में मदर यशोदा के बच्चे बने, है ना. पिता भी बनने को तैयार है और आपका स्टूडेंट भी बनने को तैयार है. आप जिस रूप में चाहो, ही इज एबल टू, ही इज रेडी टू. हमने 5 रस डिस्कस किए थे ना. साख्य बनने को तैयार हैं, आपके पुत्र बनने को तैयार हैं, आप उनके दास बनना चाहते हो, आप उनको दास बनाना चाहते हो, वो सब चीज के लिए रेडी हैं. तो एक रेसिप्रोकेशन जब तक नहीं होगी सोल की, द नेचर, द धर्म ऑफ द सोल इज टू सर्व एंड गेट सर्व्ड, वो पार्ट मिसिंग हो जाएगा दोनों ही में, परमात्मा में भी. और तो राइट एंड रॉन्ग नहीं है, बट हर एक की गति है, हर एक की अपनी डेस्टिनी है और लाइकिंग है. But yes, if we are studying, then we should know pros and cons, that it has no sukh. And so when there is no sukh, there's a chances of falling down back into the material pool, because soul will act according to its dharam.
lurking for the happiness, और happiness is only with the real form of Krishna, क्योंकि वही respond करेगी. Light will not respond to us. लाइट में तो जाके, जैसे मान लो कि सन की रेज है, उसमें जाके एक डस्ट पार्टिकल बस चिपक के बैठ गया, बस दैट्स इट. व्हाट विल वी डू? बट ब्रह्मवाद एक और टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगी. एक भगवान की निराकार फॉर्म को मानते हैं, बट ये मानते हैं कि वो हमसे डिफरेंट है. वो फॉर्म नहीं है निराकार रूप में, पर वो भगवान है और हम उनके अंश हैं. पर कुछ लोग होते हैं, उनको कहते हैं मायावादी. वो सोचते हैं कि हम भगवान में जाएंगे और मर्ज हो जाएंगे और भगवान और हम एक ही हैं, हम ही भगवान हैं, हमने अभी माया का रूप ले लिया, फिर हम बाद में फिर भगवान बन जाएंगे. तो इम्पर्सनलेस भी दो तरह के होते हैं. एक होते हैं मायावाद, जो कि मानते नहीं है एग्जिस्टेंस ऑफ टू, दे थिंक दैट वी आर जस्ट वन विद द लॉर्ड. और एक होते हैं ब्रह्मवाद, जो मानते हैं कि हम अलग अलग हैं, वो ब्रह्म है और हमने अभी फॉर्म ली हुई है, फिर हम जब ये बॉडी छोड़ देंगे फिर हम जाके ब्रह्म के पास बैठ जाएंगे. ये शालिनी. Mataji, I want to ask, like, if even if we get liberated and reach Krishna, matlab, if there is a chance, and what if, like, what is the proof that we do not get any desire there? Like, because the soul is the same, and if soul can get desire anywhere else, I mean, how do we know that we will not have desires there? Because we will not go there till we be done with this study here. You will not be passed and promoted to that level. समझ रहे हो? जब आपने एक बार 12th पास कर लिया, आपने अपने एग्जाम्स दे दिए, आपको समझ आ जाएगा, परफेक्ट हो, तभी तो यहाँ बैशिंग होगी. पहले आपको क्या लगता है कि अभी ऐसे सोचा और अगले दिन विमान आ जाएगा? ऐसा नहीं होता. अगर हम इसको और शास्त्रों को पढ़े तो हमें समझ आता है कि जब पहले तो हमारी यहाँ पे भक्ति कंप्लीट होती है मटेरियल लाइफ में, और फिर जो भी हमारा एक स्वरूप सिद्धि हमें मिलती है, हमें पता चलता है कि हमारा क्या स्वरूप था, हमारा क्या रिलेशन था भगवान के साथ. कईयों की एक जन्म में हो जाती है, कईयों को और भी जन्म लेने पड़ते हैं. मान लेते हैं कि हमारा इसी जन्म में हमें स्वरूप सिद्धि, हमें समझ आ गया, वी हैव प्योरिफाइड आवरसेल्व्स सो मच दैट वी रियलाइज्ड हु वी आर. देन वॉट एवर फॉर्म, जो भी हमारा रिलेशन है, मान लो कि मुझे भगवान बाल गोपाल ही पसंद है, मुझे मेरा वही रिलेशन था उनके साथ गोलोक वृंदावन धाम में, तो अब मैं किसी और प्रकोष्ठ में पहले जाऊंगी जहां मैं और ट्रेंड होंगी उनकी लीला में, क्योंकि भगवान के अनंत यूनिवर्सेस में लीला पैरेलली चल रही है. सो यू फर्दर ट्रेंड to on one of another material planet where that लीला is already happening. मतलब पूरा ठोक बजा के आपको एंट्री मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है कि वहां से फिर फॉल डाउन होने का क्योंकि चांस नहीं है. कंप्लीटली प्योरिफाइड. जब आप सच को समझ जाओगे तो कोई डिजायर ही नहीं बचेगा फिर. नहीं, और डिजायर, एक ही डिजायर बचेगा ना. डिजायर विद द कृष्णा मीन्स यूल नेवर फॉल डाउन हियर. जब समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर वहां जाके ये वाला डिजायर क्यों आएगा? पर उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी. बैशिंग एट एवरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग इट कंप्लीटली. भक्तों का जीवन आसान नहीं होता. अगेन डिस्क्लेमर, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. पहले शुरू में तो अभी आपको मतलब फुसला रहे हैं ना भगवान, तो अभी तो अच्छा अच्छा दिखाएंगे सब कुछ, अभी अच्छा अच्छा देंगे भी, मे बी गुड थिंग्स, राइट थिंग्स विल कम. कई बार जस्ट टू टेस्ट अ डिवोटी एट द फर्स्ट लेवल, बहुत सारी ऑपुलेंसेस आनी शुरू हो जाती है फ्रॉम ऑल द साइड्स. सडनली पैसा मिलेगा, सडनली लविंग पार्टनर और समथिंग, सो दैट देख लो, आर यू स्टिल श्योर ऑफ मी? बट then you will show your grit by your actions. और फिर धीरे धीरे भागवतम में तो आता है कि जब भगवान अल्टीमेट कल्याण करने लगते हैं ना, तो कंगाल बना देते हैं आपको, सब कुछ ले लेते हैं आपका, कोई आपके पास सोर्स ही नहीं बचेगा. ही विल टेक अवे ऑल योर ऑपुलेंसेस, ऑल योर रिचेस, ऑल योर फैमिली मेंबर्स, कुछ नहीं बचे, ताकि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नथिंग बट यू. जब अल्टीमेट वो कृपा करने पर आते हैं कि दैट इज योर टेस्ट, whatever you have taken, very good, that is for my betterment.
पर अगर उस वक्त ये ख्याल आ गया कि इतनी भक्ति की, आपने ऐसा कर दिया मेरे साथ, तो वो बोलेंगे नहीं, अभी आओ यहाँ पे, अभी 25-30 हजार साल और जन्म लो, बार बार आओ और सीखो, अभी आपको समझ नहीं आई। पर जब समझ आ जाएगी ना, मान लो शालिनी आपके वॉलेट में जो नोट है, अगर मैं आपको बोल दूं कि वो जाली नोट है ना, तो आप कहाँ, क्यों उसकी वैल्यू करोगे? जब आपको समझ आ जाएगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, फिर कहीं पे भी जाओगे आपको पता होगा ये तो नकली नोट है, इनकी मैंने क्यों वैल्यू करनी है। तो आपको ऐसा क्यों लगेगा भगवान के पास जाके कि नहीं, डिजायर तो वही नीचे ही पूरा हो रहा था, यहाँ कौन सा मजा आ रहा है? इतनी सी खुशी आती है हमारी लाइफ में, ब्रैकेट में उतना ही बड़ा दुख लिखा होता है उसके साथ, कुछ ना कुछ। कोई रिलेशन देख लो, कोई मटेरियल चीज देख लो, चीज आई नहीं कि उसके साथ दुख, पहले ये खो ना जाए, पहले तो यही दुख कि ये खो ही ना जाए, यही दुख। बड़ा डायमंड आ गया, पहन लिया, बहुत खुशी हुई 15 मिनट, व्हाट इफ इट फॉल्स डाउन समवेयर, फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं यूज टू भी हो गई हूँ उसको पहनने को, है ना। बड़ी गाड़ी ले ली, कोई बाहर स्क्रैच मार गया, पूरी रात रोते रहे, मेरी गाड़ी को किसी ने स्क्रैच मार दिया, मेरी गाड़ी को किसी ने स्क्रैच मार दिया। वो सुख तो लिया नहीं गाड़ी, बड़ी गाड़ी में बैठने का, पर दुख और हो गया। और दिल्ली में तो वो शीशे भी उतार के ले जाते हैं साइड के, कभी वो लोग उतार उतार के, हम लोग रखते थे कि कोई शीशा ना ले जाए। मतलब सुख कहाँ है? आचार्य इनकी वाणी सुनो संतों की, तो समझ आता है कि यहाँ सुख ऐसा है कि जैसे किसी को सर से पकड़ के पानी में डाल दो ना, और दबा के रखो, और 1 सेकंड के लिए बाहर निकालो, उसको ऐसे सांस आती है, ये सुख है इस जीवन में। और उस सुख के पीछे हम सोचते हैं कि पता नहीं, और वो भी कितनी, लुक एट द पेन्स पीपल आर फीलिंग। हम लोग तो बहुत ही अच्छे, ये कर्मों का फल होगा जरूर कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल घरों में बैठते हैं। लुक एट पीपल जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, खाने को लिए भी नहीं है, डस्टबिन से बिन कर खाते हैं, है ना। आप सबके मम्मी, मैं तो अपने बच्चों को एग्जाम्पल देती हूँ, आपके मम्मी पापा भी देते होंगे कि खा लो, कुछ लोगों को खाने को भी नहीं मिलता। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम तो पूछ रहे हैं और खिला रहे हैं तुमको, कई बच्चे हैं जिनको खाने को भी नहीं मिलता। सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पेन्स। तो या मतलब अंत में जो वस्तु है ना, भगवान तो सेम ही रहेंगे, ब्रह्म में भी परमात्मा में भी, इसीलिए उन्होंने कोई लिमिटेशन नहीं रखी। लिमिटेशन हमारे सुख की हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जब आपको अल्टीमेट फॉर्म का स्वाद मिल सकता है, व्हेन यू कैन कंप्लीटली गेट हिम act with you, why would you settle for something which is not the complete what do you say, realization of the same supreme? So okay, ये क्लियर हो गया। अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अनार्य, है ना, उसको बोल रहे हैं कहाँ से तुम्हारे अंदर ये कलमश आ गई है, ये इम्प्योरिटी क्यों आ रही है तुम्हारे माइंड में, क्यों तुम्हारे गंदगी आ रही है। मतलब ही इज ट्राइंग टू रिमाइंड हिम बाय, जैसे होता है ना कि कई बार कोई मैच खेलने जा रहे हैं, टेस्ट मैच, और वो बेस्ट बैट्समैन है, उसकी एकदम से जान निकल गई, इतना क्राउड या दूसरी टीम देख के, तो उसका कोच बोलेगा ना हिला के, भाई क्या हो गया, तुम्हारे अंदर ये कैसे आ गया, हु आर यू। तो अनार्य, तुम तो अनाड़ी नहीं हो, तो तुम ये क्या कर रहे हो, जो तुम करोगे इससे 3 चीजें होंगी। एक तो दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु यू आर, दूसरा इट विल कॉज यू इनफेमी, यहाँ पे रहोगे तो इनफेमस हो जाओगे, बोलेंगे एक अर्जुन था वॉर में गया और मुंह छुपा के वापस आ गया, क्योंकि इट इज नॉट अ क्षत्रिय सिम्टम टू गो एंड देन नॉट कंप्लीट द एक्शन। और तीसरा, अगर तुम सोच रहे हो कि ये तुम बड़ा पुण्य करके कोई हायर प्लैनेट्स पे जाओगे, तो जो इंसान अपना धर्म नहीं पूरा करता वो कभी भी हायर प्लैनेट्स में प्रमोट नहीं होता। तो इन शॉर्ट, you know, Krishna is trying to point out that your state of confusion is very, very dishonorable and is inappropriate. And rather than comforting him, he's trying to make him uncomfortable. So, you know, God sometimes put us deliberately in a turmoil. कई बार इस तरह की situations में डालते हैं ताकि we
search for the perfect answer or the right knowledge, and then we move to the upper level. जैसे वीडियो गेम में होता है ना, hurdles होती हैं, तो जब hurdles आती हैं हम उनको solve करते हैं, तभी हम next level पे जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही हमारे लिए गेम एक रची हुई है जिसमें हमें hurdles क्रॉस करनी है, धीरे 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 वी हैव टू क्रॉस द लेवल्स। और जैसे जैसे हम जिस इंटेलिजेंस से क्रॉस करेगा उसके सामने वो वाला लेवल आ जाएगा। Thus, again answering Shalini's question that we have to be पूरा परिपक्व बन के यहाँ से आपको जाने का मौका मिलेगा। It will not just stop at yeah. You were smiling. You have a question, Shalini? The fact that you said that, you know, the Lord deliberately puts us in a situation which is very conflicting and वो turmoil दिमाग का वो, because we are not left in any like with any other option than just to think about him. Ultimately हम उन्हीं को approach करेंगे कि please help me, please, you know, guide me, whatever it is. But Mataji, I've also seen that, you know, like this is in our life, like we have to do all other jobs as well. Like if I'm working, I have to go to office as well, and I'll be surrounded by certain kind of people who I am not able to associate now, but it's tough to sit with them because they talk in a certain way, they use certain words, and in fact my colleagues, most of them are non-vegetarians and they drink, although I have left it, but it's very difficult to sit with them and to make them understand. I don't know, like I'm right now learning to be, you know, how to deal with those situations, and because I won't be able to find devotees everywhere who would understand me, and you know, I have to carry on my life, I have to do my work, जो धर्म है मेरे को, to earn my living, वो तो मुझे करना पड़ेगा। तो उस situations में and in general life also, there are a lot of tests which is like I am currently facing. वो टेस्ट मुझे दिख रहे हैं, फील, that's why I was smiling कि ये टेस्ट जो मेरे चल रहे हैं वो हाँ, बहुत देखो, इनिशियली बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज अब क्या हो रहा है ना कि आप यू आर ब्रेकिंग फ्रॉम द रेगुलर मोल्ड ऑफ योर लाइफ, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू। कोई भी चीज को जब आप ब्रेक करके निकलते हो तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, बट इनिशियल आती हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस आई वुड रेकमेंड टू अवॉइड, क्योंकि जैसे जितना इम्पोर्टेंट है भक्ति में सत्संग करना या साधु संग करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है बुरे संगत को छोड़ना। क्योंकि अभी हमारी भक्ति उस लेवल पे नहीं आई कि हम कैरिड अवे ना हो जाए, है ना। हम एसोसिएशन या तो देते हैं या लेते हैं, तो देने की एक स्टेज आएगी जब बिल्कुल फर्म हो जाओगे ना, तब कहीं पे भी बैठोगे कोई मैटर नहीं करेगा। वो स्टेज आएगी कि 1000 लोगों के 1000 इस तरह के माइंड वाले लोगों के बीच में बैठे हो एंड यू आर अनअफेक्टेड, इट वोंट अफेक्ट यू। तो उस टाइम पे क्या होता है, बल्कि ऐसे लोग एसोसिएशन देते हैं, उनका ऐसा डिमीनर हो जाता है कि लोग मतलब यू नो दे वुड वांट के टू हाइड देयर ड्रिंक के वो आ गए हैं यू नो उनके सामने। बट वो स्टेज अभी हमारी नहीं है, तो अभी, और हम लोग कल तक उन्हीं के साथ बैठते थे, तो अभी तो वो वैसे भी बोलेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब कल तक तो खुद भी खाती थी, अब बड़ी प्रीचर बन रही है कि नॉन वेज नहीं खाना एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो पीपल कम अप विद दोस थिंग्स, बट इट्स ओके। वी हमारा पॉइंट एक वन पॉइंटेड फोकस है हमारा, हमें यहाँ से निकलना है, हमें कॉन्फ्लिक्ट, हमें किसी को समझाने नहीं बैठना, उनकी अपनी गति है और भगवान का सबसे सेम रिलेशन है। कोई हमको ये थोड़ी है कि सिर्फ हम ही हैं भगवान के लिए, सब उन्हीं के बच्चे हैं, उनका भी वक्त आएगा, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है, वो भी किसी लेवल पे है। पर जिस दिन मैं इस सिचुएशन में आऊंगी तो मैं उनको एसोसिएशन जरूर दूंगी, अगर वो लेना चाहेंगे। कि कोई समझना चाहता है, कोई अगर हम्बली आके आपसे सबमिसिव वे में समझना चाहे कि व्हाट यू आर डूइंग, कैन आई लर्न मोर अबाउट इट, देन डेफिनेटली टेल देम। बट अगर कोई चैलेंज करे, यार कर क्या रही है, कुछ नहीं होने वाला इससे, तो उसको बोला हाँ हो सकता है कुछ नहीं होने वाला, कैन बी टॉक लेटर एंड जस्ट मूव ऑन। क्योंकि अभी एसोसिएशन दे नहीं पाओगे तो लो भी मत, इतना तो प्रोटेक्ट करो अपने आप को, है ना।
You Right. can't convince them why, क्योंकि वो they will take you to the length of discussing के ये तो chicken farms में तो chicken बनते ही इसलिए कि उनको खाया जाए, so you will just waste your time and energy on things which is of no relevance. बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बताएंगे कि फिर वीगन क्यों नहीं बन जाते, गाय का दूध कितनी मुश्किल से निकलता है. सो ठीक है, हमें एक्टिविस्ट नहीं बनना है, हम भगवान को, हम अपने आप को सर्च करने में निकले हैं, और ये माया इस तरह के लोग भेजेगी आपके पास, ज्यादा भेजेगी इन द बिगिनिंग, सो दैट योर टाइम इज वेस्टेड. और वही तो हो रहा है. हम्म. बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन है, बहुत तरह की लिमिटेशन है. जब हम भागवतम पढ़ते हैं पता चलता है कि हमारी सुंदरता भी हमारे लिए मुसीबत होती है, ये हमारा समय नष्ट करने को आती है, क्योंकि सुंदर इंसान सुंदरता में घुमा रहता है. आधे टाइम तो वो खुद को ही देखता रहता है, आधे टाइम दुनिया उसको देखती रहती है. उसका कितना टाइम खराब होता है इसी में, उसके पास कहाँ ये क्वेश्चंस का टाइम बचता है. वो तो ये, मैं आई एम ब्यूटीफुल एंड लोग, पीपल आर लुकिंग एट माई ब्यूटी, है ना. सो ये जितने भी ऑप्युलेंसेस हैं या सुंदरता है, ये हमारा टाइम नष्ट करने के लिए आती है. तो ये डिस्ट्रैक्शंस है, और इसी तरीके से ऐसे लोग आएंगे, आपको आकर क्वेश्चन करेंगे, कभी नॉन वेज के ऊपर, कभी अल्कोहल के ऊपर, कभी बोलेंगे शिव तो पीते थे, सोमरस पीते हैं, डेमी गॉड्स दे ऑल हैव सोमरस, तो हमें क्या प्रॉब्लम. भगवान ने बनाई क्यों है ये दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया बनाई क्यों, अगर इसमें हमने मजे नहीं करने तो. दे विल कम अप विद क्वेश्चंस लाइक दैट, Yeah. है ना, कि क्यों क्यों नहीं खाने हमें, क्यों लहसुन और प्याज नहीं खाना, वो तो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए. Then they will send you clippings of Ayurvedic doctors, but they have not read Bhagavad Gita. They don't understand that everything has different energy, and why somebody who's following a particular path has to get rid of things, bad association, bad food, bad things which can just hamper our growth. ऐसा थोड़ी है कि शराब पीने से कोई भगवान एकदम बिल्कुल ऐसी वाली आंखें निकाल के हमारे ऊपर डालते हैं कि हम जल जाएं. हमारे रास्ते में इम्पेडिकेंट बन जाएगा ना, हम खुद ही, हमारा दिल साफ नहीं होगा, हमारी सोच साफ नहीं होगी. मतलब पहले ही माइंड को बंदर कहा गया है, कंपेयर किया गया है हमारे माइंड को ना, कि बंदर की तरह उछलता है, बिल्कुल भी सेटलिंग नहीं है. अब उस बंदर को शराब पिला दो, सोचो, जस्ट इमेजिन इफ अ मंकी, उसको अगर कोई अल्कोहल दे दो तो वो पहले ही इतना जंप करता है वो, और उसके बाद क्या करेगा. तो हमें यहाँ पे बैठ के भगवान का नाम जपना है, हमें अपने अंदर की कलमश साफ करनी है. हम अगर अपने आप को अल्कोहल दे देंगे तो उससे भगवान नाराज नहीं होंगे, हमारा रास्ता मुश्किल बन जाएगा. तो हमें अपना रास्ता आसान बनाना है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं. यू शुड हैव अ राइट रीजन. ये कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है. आप अपने माइंड को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो जो कि अस्थिर है. देखो ना कि एक एक मिनट में कभी आप फोन उठाते हो, कभी आप बुक उठा लेते हो, कभी आपको किसी से बात करनी होती, कभी आप टीवी के चैनल्स बदलते हो. व्हाट इज दिस. हमारा कंट्रोल ही नहीं है अपने माइंड, हम माइंड के कंट्रोल पे चल रहे हैं. वो 2-2 मिनट में हमको बोलता है अब ये कर, हम फटाफट से वो करने लगते हैं. अब ये कर, मेरा मन इसमें नहीं लग रहा, जबकि हम मन है ही नहीं. मन is not a part of our soul. मन is the part of this body. और हम उसके इशारों पे नाच रहे हैं. अब हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं. अब हम मन को कहना शुरू करेंगे, शट अप, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, दिस इज माई भक्ति टाइम, दिस इज माई क्लास टाइम, आई विल नॉट लिसन टू यू. मन बोलेगा पेरेंट्स आर गोइंग आउट, टेकिंग यू आउट फॉर डिनर, इट्स फ्राइडे, नो इट्स माई क्लास, आई कांट लीव इट. I definitely can hear the recording later on, but still I will, because this is my commitment to have a control over this man who's been driving me, जिसने मेरा सत्यानाश किया हुआ इतने जन्मों से. अब मैं उसके कंट्रोल में नहीं आऊंगी, अब मैं उसको अपने कंट्रोल में कीऊंगी, है ना. तो मन को मारना सबसे बड़ी सिद्धि आपको समझ में आएगी कि इस प्रोसेस में मन को मारना है. ये मन को मारने का गेम है जिसके लिए हम सारी साधना करेंगे कि हमारा मन मर जाए. जब ये मरेगा, क्योंकि देखो सटल बॉडी, जो ग्रॉस बॉडी है ना, वो तो जल जाती है मरने के बाद, पर जो हमारी सटल बॉडी है वो कैरी ऑन होती है जब हम दूसरे बॉडी में जाते हैं. मन, बुद्धि, अहंकार हमारे साथ ट्रैवल करता है, और वो बड़ी, उस बॉडी को छोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है. तभी तो लोग जो सोचते हैं कि हम मर ही जाए, एक बार मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे.
Because it is easy to get rid of the gross body, it is very difficult to get rid of your subtle body, which travels from with you, and it carries the impression of the previous life. और भी dangerous, उसके पास data भी है कुछ, है ना? बट मैम सभी माता जी कुछ याद तो नहीं रहता अपने प्रीवियस लाइफ का? व्हाट डू वी रियली कैरी फ्रॉम अच्छी बात है, याद रहे तो सोचो। पहले इतना कुछ डील कर रहे हो, अगर ये भी याद आ जाए कि क्या थे। पर जो जिनको क्लैरिटी मिलने लगती है भक्ति में, जब आप थोड़ा सा आप क्लेंस होने लगते हो, लोगों को अपने जन्म याद आने लगते हैं। आप देख सकते हो, बिकॉज ये आपकी अपनी जर्नी है, तो आपको समझ आने लगता है। जानी जान लोग होते हैं जो अपने प्रीवियस लाइफ्स को भी रीड कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, बट क्यों, क्या करना है, पर इंप्रेशंस रहते हैं। मान लो आप मंकी थे, आप देखोगे कई लोग बहुत उछलते हैं ऐसे ही, आप उनको बल्कि देख के बोलते हो दिस पर्सन हैज सो मच एनर्जी, जंप्स लाइक अ मंकी ऑल द टाइम, probably he was in a body of a monkey in the previous life, that's why he's acting like that, है ना? वो इंप्रेशन कैरी हो जाता है। कोई ऐसे खींच खींच के बहुत जोर जोर से खाना खाते हैं, तो पता नहीं वो कौन से कोई एनिमल की फॉर्म में थे, या और कई लोग इतना धीरे बोलते हैं कि आप सुनते एक वर्ड के बाद वो रुक जाते हैं, तो वो मे बी स्लॉथ की बॉडी में थे, या कोई ऐसी सो वो इंप्रेशंस होते हैं जो कैरी करते हैं, और हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि एवरीबडी शुड बी परफेक्ट, तो हम जज करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे से अलग होता है हम उसको जजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और अपना उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपने आप को राइट और उसको रॉन्ग बताने में पूरा जीवन खराब कर देते हैं। यही होता है ना रिलेशंस में, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। व्हाई यू आर नॉट लाइक मी, दैट इज द प्रॉब्लम। आई डू सो मच फॉर यू, यू डोंट डू दैट फॉर मी, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो क्लोन्स थोड़ी है, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, पर आप उससे क्या चाह रहे हो कि जैसे मैं आपके साथ करूं ना वैसे आप मेरे साथ करो, फिर प्रॉब्लम। सो वी वर ऑन कि भगवान हमें इस तरह की परिस्थितियों में डालते हैं ताकि हम क्वेश्चन करें, हम अपना, हमारा रूटीन तो टूटे, हम बहुत खुश रहेंगे, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे तो बोलेंगे ठीक है यहीं आ जाते हैं, यहाँ पे इतना बुरा नहीं है। लाइक माई फादर, इफ आई टेल हिम, वो कहते हैं अच्छा ही तो है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो बहुत अच्छा है। मैं अपना सुबह वॉक पे जाता हूँ, 2 घंटे हा हा ही कुक करके आता हूँ, उसके बाद बहुत बढ़िया खाना बना के देती है मेड, ब्रेकफास्ट इतना बढ़िया मिलता है, आज आलू पूड़ी खाएंगे, कल छोले भटूरे खाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कोई। सो प्रॉब्लम यहाँ पे कब तक नहीं है, जब तक प्रॉब्लम आई नहीं है। अभी कोविड आ गया, आपकी आंखों के सामने आपके लोग मिनट में लाइक मॉस्किटोज दे हैव फ्लाइड आउट ऑफ योर लाइफ। सो प्रॉब्लम तो जब तक नहीं आई तब तक सब कुछ ठीक है, जैसे ही आ गई सब खत्म। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इफ इट इज अल्टीमेट ट्रूथ, तो ये तो हमेशा अच्छी रहनी चाहिए ना, कि सब अच्छा है तो हमेशा अच्छा रहे, पर अगर नहीं है तो इसका मतलब ये अल्टीमेट नहीं है। सो देयर इज समथिंग अल्टीमेट दैट वी हैव टू लुक फॉर। या मेकिंग एनी सेंस? चलो अब पढ़ लें हम फर्स्ट और सेकंड। मैंने सोचा था हम 6 तक पढ़ लेंगे, बट एनीवेज कोई बात नहीं। सो फर्स्ट और सेकंड हमने नहीं पढ़े, पढ़ लेते हैं। Anchal is smiling so she can read. Text 1. संजय उवाच तं तथा कृपायविष्ठाम् अश्रु पूर्णाकुलेक्षाणां विषीदन्तम् इदां वाक्याम् उवाच Madhusudana. Translation: Sanjaya said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. Purport: material compassion, lamentation, and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudana is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of drowning man is senseless.
A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called Sudra, or one who laments unnecessarily. Arjuna was a Kshatriya, and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can't dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose, the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority, Lord Krishna. Sri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of real life. Shall I? You want to summarize? So basically here, what Sanjaya is trying to say that material compassion and lamentation and tears are all signs of ignorance of self. So if we do not realize what our self is, then we will have these kind of lamentations and tears. So for self-realization, over here they were saying that Madhusudan, they have used the word Madhusudan, that because Lord Krishna had killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that is overtaken, that is in his mind. So now over here he is also trying to say that no one knows where compassion should be applied, whether am I right for this particular thing, whether I should be compassionate or not. So that understanding is not clear. So for that, Lord Krishna has like in this in these slokas, like chapter 2, so he will be talking about all these things and clearing the doubts which Arjuna has in his mind, and this will be instructing us in self-realization by the studies of the material, like material and the spiritual soul. He'll be explaining everything about that, and the realization is possible when one works without attachment to the fruits. So that is what he's trying to tell over here, and then he'll be explaining the whole concept. Any doubt? Okay, clear? Okay. Second, you can Yukti? divide in maybe 2-3 people because it's a long purport. Yeah, okay. Yukti, you can read the first few paragraphs, and then Arushi can read after that. कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अश्वर्गयम् akirtikaram Arjuna. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy." Purport: Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagwan throughout the Gita. Bhagwan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in three phases of understanding, namely Brahma, or the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In the Srimad Bhagavatam, this conception of the absolute truth is explained thus: Vidanti tat tattva vidash tattvam yaj jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagwan iti sabdyate. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical.
such phases of the absolute truth are expressed as Brahma, Paramatma, and Bhagwan. Shall I read more? No, I think someone else can read. Do you want to summarize this? Just Yeah, in short. yeah. In this purport, it has been said that in Srimad Bhagavatam, it has been mentioned that absolute truth is described in three phases: Brahma, Paramatma, and Bhagwan. And Sri Krishna has been described as the Supreme Personality of Godhead, and he is the Bhagwan. And it is compared that Brahma is all-pervasive spirit, impersonal all-pervasive spirit. Paramatma is the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagwan is the Supreme Personality of Godhead. Beautiful. Okay. Arushi, you want to go next? Yeah, sure, but I will not be able to switch on my video. No problem. Yukti, that's called Brahman. Brahma तो भगवान के गुण अवतार है. Brahman. Brahman, okay. या Brahm. Brahm. Okay, Brahm. These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects. Arushi, your voice is getting muffled. It's fine. You can just listen. No problem. Shalini, you can go and then Arsha can finish it. These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the supreme absolute truth. Therefore, the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagwan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists, although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter. The sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students of three different phases are not in the same category. Should I read further? You can summarize in short. Okay. Yeah, so here the example of sun has been given to understand the aspect of Brahman, Paramatma, and Bhagwan. So it stated that there are three divine aspects, like in the example of sun, it's the sunshine, sun surface, and the sun planet itself. The ordinary students who just know about the sunshine, they will only simply understand its pervasiveness, but who are more advanced, they will go into the next level, which is sun surface. And the one who knows the absolute truth and have realized the ultimate truth will only trust about the sun planet itself. So that's how they have compared. And if they're only focusing on sunshine, then it's compared to Brahman. And if it's about a sun's surface, then it's compared to Paramatma, the knowledge of Paramatma feature of the absolute truth. And the one who realizes the truth, the Bhagwan feature, is compared to
the planet itself, the sun planet. So the bhaktas who are the transcendentalists, who have realized the Bhagavan feature of the absolute truth, they are the topmost transcendentalists. So they'll only focus on that, and they'll not believe in anything else. So that means जो planet sun में पहुंच गया उसको तो बाकी दोनों चीजें भी इंक्लूड हो गई ना, तो उसको पूरा पैकेज मिल गया, उसके लिए तो रेज Because भी they are all समझ आती related. है Yeah. है ना. सो जो भगवान को समझ लेता है वो ब्रह्म और परमात्मा तो ऑटोमेटिकली उसके रियलाइज हो गए. प्लस more expansively he could understand about the true form also. It's 10:05 p.m. So should we finish it or next class? We can do it in the next class. I don't want to hand everybody. You can just mark here. We can finish it and Okay. Everyone, just one thing. We're only taking classes on Wednesdays and Fridays now. I know Shadi season is, my cousin is getting married next door, but it's just about taking out time. If you can, Wednesday and Friday. If you still think this is too much, we can stick with once a week also. Because Mataji is, I know, Mataji is especially taking out time for us. I know people are taking videos, they're watching, but the idea was to conduct live classes. Yeah, I'm not talking about you guys because most of you are regular, but everyone who's listening to the recording, please, Wednesday and Friday. And if it's too much, then we can stick with Friday also. I know a lot of things are going on, wedding hai, exam hai, period cramps, everything. We all go through it. But sometimes a lot of things, but just try and take out these 2 hours in 1 week, Wednesday and Friday, yeah? Yeah, because we're trying to learn something new. ये वही बात हो गई ना कि स्विमिंग सीखने गए and you just put your finger inside the pool and then you expect yourself कि अब स्विमिंग आ जाएगी मुझे. You'll have to jump inside the pool to actually learn how to swim. It's the same thing with spirituality. You can't just read thoda sa and be like अब समझ आ गया या अब नहीं समझ आएगा. Maybe this is not for me. So if you've started something, I would just go all the way in, experience it for yourself, and then of course you won't be able to leave. So just be there. And if you're not able to make it for the class, just message Mataji and let her know in advance so that it becomes easier for her. Yeah? Okay. Also बेटा आपका commitment will, this is not for me, this commitment मेरे से बहुत अच्छे speakers और YouTube पे there are videos available who are teaching you Bhagavad Gita in 7 days, 12 days, 15 days, whatever. But this is all about the associating with the like-minded people. Association, sadhu संघ जिसकी हम बात करते हैं वो यही है. When you pick up things from, you pick up clues from others' questions, और आपके अपने उस टाइम पे questions आते हैं which solve that for you forever, जो कि सुन के नहीं होता क्योंकि आप पूछ नहीं सकते हो बाद में. तो आई रेकमेंड, अगर हमारे लिए फिर भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक क्लास में मूव हो जाओ, बट वो क्लास इट शुड बी लाइफ एंड डेथ, देन यू शुड नॉट लीव इट. आप कहीं पे भी हो, आजकल तो डिवाइस है ना, बून है कि हम लोग के पास, सबके पास फोन्स हैं, आईपैड्स हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम 1 घंटा तो निकाल सकते हैं अपने लिए ना. तो ये 1 घंटा, और अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ये कमिटमेंट तो भक्ति के लिए तो और कमिटेड होना पड़ेगा. तो ये तो अभी सजेस्ट करूंगी कि मुड़ जाओ फिर, दिस इज नॉट फॉर यू. क्योंकि अगर अभी भी नहीं कंपेयर कर पाए द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट, इस स्टेज तक इतनी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये किस लिए मैं कर रही हूँ. दिस इज बियॉन्ड माई अर्निंग अ लिविंग और यू नो माई टेम्पररी लाइफ दैट आई एम इन, जिसमें शादी, बर्थडे, डेथ, सब कुछ ही आएगा, कोई भी इवेंट आ सकता है. सो या चलो. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Mataji. everybody. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you for Hare joining. Krishna. Hare Krishna.